Okay. Now next is egestion. Now the undigested food is expelled out from the body. The process of expelling out undigested food from the body is called this egestion. Okay children? So these are the various steps of nutrition. Holozoic nutrition. Holozoic nutrition consists of different steps like ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are the various steps of holozoic nutrition. Ingestion means taking food inside the body. Different animals get food with the help of different methods, like sparrow, they get food with the help of short beak, and in hummingbird there is a long tubular beak which help them to suck the nectar from the flower, and in the snake jaw helps to get the food inside the body. So you have seen how intake of food takes place, that is called ingestion. Then digestion, the food that animals eat is in the complex form. This complex food is broken down into simple and soluble form. This is called digestion. कॉम्प्लेक्स फूड को एनिमल सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि वो सॉल्युबल फॉर्म ब्लड में जा पाए और ब्लड से फिर हर जगह ट्रांसपोर्ट हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइजेशन. ठीक है. एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड by the finger like projection present in the small intestine. It is called absorption. Are you following children? Are you following? Okay, I will mute, then you will not listen any sound. So digestion you have followed, absorption also you have followed. Now assimilation, the absorbed food is used for growth and for making different parts of the body, that is called, and for getting energy, that is called assimilation. Now next step is egestion, in which undigested food is expelled out from the body, that is called egestion. Now children, you will read about the digestion of food, how food is digested in human being, human digestive system, very important. All of you will practice the diagram and you will label the diagram neatly and you will describe it, very important. Okay. Digestive system of human being, human digestive system, you can revise and all of you have to practice the diagram. It is very important. All of you should know children that in human being digestion takes place in the alimentary canal. Alimentary canal is a muscular tube that starts from mouth and ends at anus. Okay. diagram देखिए बुक में. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है और एनस में जाकर एंड होता है. ठीक है. अब देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, लाइक फर्स्ट इज हाउ द फूड इज टेकन विद द हेल्प ऑफ माउथ. ओके. एंड देन द बकल कैविटी इज देयर. बकल कैविटी आप किसको कहते हैं? टीथ एंड टंग. दिस टंग एंड टीथ जो मुंह के अंदर है, दैट इज बकल कैविटी. व्हेन यू टेक फूड थ्रू द माउथ इट कम्स इन द बकल कैविटी. बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग. एंड इन माउथ देयर इज सैलिवरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस सलाइवा एंड द फूड इज डाइजेस्टेड. हियर the salivary gland produces saliva that contains enzyme. Enzymes are the chemicals
which help in digestion of food. Okay, enzymes are biological catalyst which help in digestion of food. Now in saliva there is enzyme and that converts starch into sugar. Okay children, when you eat starchy food like potato, then after some time, or bread, then after some time you feel that the taste is sweet. How this taste is coming? Starch has no taste, but after some time when you chew it, you have sweet taste, because your salivary gland produces saliva which contains enzyme, and that enzyme converts starch into sugar. ठीक है बच्चों, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए आपको स्वीट टेस्ट लगता है. ठीक है. देन इन माउथ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. इंसीजर हेल्प इन कटिंग द फूड, canine help in tearing the food, and premolar and molar help in grinding the food. And there are two sets of teeth you have read children: milk teeth and permanent teeth. Okay, and difference between the two is very important. Now you will see that the food is digested. Which food is digested? With the help of salivary amylase. Enzyme is salivary amylase that converts starch into sugar. So digestion begins in the mouth. Now the food passes through a tube-like structure called oesophagus. Oesophagus is the pipe-like structure through which the food passes due to the movement of the muscles, that is called peristalsis. ठीक है बच्चों, आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रिवीजन कराने में आपको थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है. ठीक है. तो जब माउथ में फूड आप लेते हैं, सेलिब्री ग्लैंड में इंजाइम्स होता है, उससे स्टार्च शुगर में चेंज होता है. उसके बाद फूड यहाँ से पाइप से होता हुआ, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, या ओसोफेगस, यहाँ से होता हुआ कहाँ जाता है? स्टमक में. बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है स्टमक के वाल से. और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ होते हैं. गैस्ट्रिक जूस में बैक्टीरिया होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है. म्यूकस होता है जो कि स्टमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है ना. एसिड क्या करता है? बर्निंग कॉज कर सकता है. तो ये म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि स्टमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है. और क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? 3 चीज़ मैं बोली थी. एक तो एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है पेप्सिन, और दूसरा क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और स्टमक में फूड जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा नहीं डाइजेस्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है. ठीक है बच्चों. तो अब यहाँ पर जो डाइजेशन होता है वो फूड में एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि फूड का डाइजेशन होता है. तो अब फूड कहाँ जाता है? स्टमक से. स्टमक से फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? ये तो काफ़ी लंबा है, क्योंकि इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसीलिए इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो यहाँ पर 3 चीज़ फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है. लीवर से बाइल जूस निकलता है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है. और इसमें एंजाइम्स होते हैं तीनों में, और ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में. ठीक है बच्चों. तो लीवर से क्या निकलता है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस. दिस जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बाइल जूस? इट इमल्सिफाइज फैट. फैट को ब्रेक डाउन करता है ये. ठीक है. और ये जो है दिस जूस प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट. अभी आप इतना ही जानिए. तो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? इट ब्रेक्स डाउन फैट. ठीक है. और ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में.
उसके बाद मैं बोली दूसरी चीज़ और क्या हेल्प करता है, पैनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, और इस पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स होते हैं और ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और प्रोटीन को, सबको ब्रेक करते हैं, सबके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ इंटेस्टाइन्स के वाल से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं और ये भी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जो बाइल जूस निकला, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकला और इंटेस्टाइनल वाल से जो इंटेस्टाइनल जूस निकला, ये सारे के में एंजाइम्स होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में चेंज करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं और ये प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट जैसे कि एमिनो एसिड में चेंज करते हैं और फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो अभी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट हाउ द फूड इज़ डाइजेस्टेड। द फूड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल ऑफ यू विल प्रैक्टिस द डायग्राम एंड you will learn it. The food digestion of food takes place in alimentary canal. Alimentary canal is a muscular tube. Alimentary canal and some glands are also associated. Like salivary gland helps in digestion of food. Liver, that is the largest gland of the body, that also helps in the digestion of food. तो आपने अभी देखा the food in the mouth, the digestion begins in the mouth. कैसे शुरू हो जाता है? तो salivary gland produces saliva which makes the food moist so that it can be swallowed, and it also contains enzymes which help in digestion of starch into sugar. ठीक है। Now this food passes through esophagus which is also called food pipe. It is a tube-like structure, and through the esophagus it comes in the stomach. In the stomach, three things are there: hydrochloric acid, mucus, and digestive juice, that is gastric juice which contains enzymes pepsin. ठीक है। तो वहाँ पर डाइजेशन होकर फिर पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा नहीं डाइजेस्ट होता है। पार्शियली मीन्स कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है। ठीक है। और अब फूड कहाँ जाता है स्टोमक के बाद? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसमें तीन चीज़ हेल्प करता है डाइजेशन में। मैं बताई लीवर में क्या प्रोड्यूस होता है? बाइल जूस, और ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? इट किल्स बैक्टीरिया। और म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, इसके प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वॉल को। ठीक है। तो ये जो है फूड का डाइजेशन कैसे होता है ये आप देखें। जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर से बाइल जूस चला जाता है, और बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। ठीक है, ब्रेक्स डाउन फैट। और फिर ये पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं और वो भी ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को शुगर में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। ठीक है। इंटेस्टाइनल वाल से भी एंजाइम्स निकलता है और फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फिर वहाँ पर जो विलाई लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको विलाई कहते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं
और फिर एब्जॉर्ब फूड को ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन पढ़ते हैं। और इस फूड एब्जॉर्ब फूड का यूज होता है ग्रोथ में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है। और जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में जो वाटर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन का वाल। और जो ये सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में चला जाता है, और फिर जब आप टॉयलेट जाते हैं तो ये आपके बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट digestive system of human being. Did you understand, children? Now the next topic is nutrition in grass eating animals. Cow is grass eating animal, okay, and digestion takes place. Our digestion takes place, you have seen, digestive system consists of different parts like rumen, omasum, then the next part is abomasum, small intestine, large intestine. Between small intestine and large intestine cecum is present. So with the help of these parts, the ruminant, cut chewing animals are called ruminant. Cow is ruminant. The food is digested in the digestive system, okay. And in amoeba also nutrition is holozoic. Amoeba gets its food with the help of finger-like projection called pseudopodia. Okay, amoeba lives in soil or pond or lake, and in pond or lake some bacteria and algae are present, and amoeba feeds on these algae or bacteria with the help of pseudopodia. They surround the food with the help of pseudopodia, and then they take this food inside their body, and in the body of amoeba there is food vacuole, and inside the food vacuole the food is digested with the help of digestive enzymes. So in amoeba also holozoic nutrition takes place. Okay, children? With this, your revision of chapter 2 is complete. All of you will revise. Thank you, children.